وہ جب بھی وہاں جاتی ہے وہ لوگ اسے مل جاتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ اپنا پیغام مسٹر فیڈرک تک پہنچا دیتی ہے۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کر لیا تھا۔ لوسیا کے جانے کے بعد میں دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ دو ہی باتیں تھیں، یا تو یہ لڑکی میرے لیے نہایت کارآمد ثابت ہوتی یا پھر یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مجھے انتہائی مشکلات کا شکار کر دے۔ دوسرے دن جب اس نے وہ کاغذات میرے حوالے کیے تو مجھے ایک گنا اطمینان ہوا۔ اس نے کہا تم وقت سے کچھ پہلے ہی روانہ ہو جانا، میں تمہیں راستہ سمجھا دیتی ہوں۔ اس راستے پر پہنچنے کے بعد تمہیں ایک مخصوص حصے پر سفر کرنا ہوگا، اور ہاں سنو، جو بات میں تمہیں بتا رہی ہوں اس پر بھی ذرا غور سے توجہ دینا۔ یہاں سے تم سیدھے مشرقی سمت چلے جاؤ گے۔ تقریباً 1.5 میل چلنے کے بعد تمہیں ایک چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس نظر آئے گا۔ یہ ایک سرکاری گیسٹ ہاؤس ہے لیکن بہت عرصے سے بند پڑا ہوا ہے، البتہ میں نے اسے اپنے لیے استعمال کر لیا ہے۔ وہاں خاصا صاف ستھرا ماحول ہے۔ باہر سے دیکھنے میں یہ گیسٹ ہاؤس جھاڑ جنکاڑ سے پٹا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جب تم اس کے دروازے سے اندر داخل ہوگے تو تمہیں کوئی گندگی نہیں ملے گی۔ وہیں میری جیپ بھی کھڑی ہوئی ہے جس میں ہمیشہ پٹرول بھرا رہتا ہے، اور اسی جیپ کے ذریعے میں اس پوائنٹ تک سفر کرتی ہوں۔ یہ کتنا طویل سفر ہوتا ہے؟ میں نے کہا بہت زیادہ نہیں۔ پھر اس نے مجھے راستے کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلا دی۔ تمام پروگرام طے ہو چکا تھا۔ لوسیا کا خیال تھا کہ وہ اپنی آنٹی فرن اور انکل جنکارڈ کو ڈائی دے کر میرے پاس پہنچ جائے گی اور پھر وہاں سے ہم دونوں پوائنٹ تک سفر کریں گے۔ اس نے ایک وقت کا تعین کر دیا۔ اس کے بعد مسٹر جنکارڈ سے رخصت ہونے کا مرحلہ آیا۔ انہوں نے اس بات سے بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا نہیں نوجوان، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو تمہیں مہمان بنائے ہوئے زیادہ وقت بھی نہیں گزرا، ابھی تمہیں رخصت کی اجازت دینا میرے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے باوجود مسٹر جنکارڈ، میں جانا چاہتا ہوں، بہتر یہ ہوگا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انہوں نے سختی سے کہا۔ ٹھیک ہے مسٹر جنکارڈ، میں آپ کی اس محبت کو نظر انداز نہیں کر سکتا، لیکن اتنی اجازت تو ضرور دیں کہ میں اپنے اس کام کو مکمل کر لوں جس کے لیے میرا جانا ضروری ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ مسٹر جنکارڈ نے سوال کیا۔ بس ایک پیغام دینا ہے کسی کو، اور اس کے بعد آپ کی ہدایت کے مطابق میں آپ کے لیے وقت نکال سکتا ہوں۔ تو پھر میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں؟ اس طرح مسٹر جنکارڈ نے مجھے اجازت دے دی اور میں ان سے جان چھڑانے کے بعد وہاں سے چل پڑا۔ لوسیا میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ چالاکی سے کام کر رہی ہے اور اس بات کا اظہار نہیں کرنا چاہتی کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ طے پا چکا ہے۔ میں نے لوسیا کی ہدایت کے مطابق سفر کیا۔ اس کام کی تمام باتیں حرف بحرف درست ثابت ہو رہی تھیں۔ 2 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے گیسٹ ہاؤس کی سیاہ عمارت نظر آ گئی۔ در حقیقت وہ عمارت سیاہ نہیں تھی، لیکن اس کی دیواروں پر کائی اور مٹی کی اتنی تہ جمی ہوئی تھی کہ اس کا اصل رنگ چھپ گیا تھا۔ لوسیا کا کہنا بالکل درست تھا۔ عمارت کے احاطے میں جیپ موجود تھی۔ میں نے جیپ کو اچھی طرح چیک کیا۔ نہایت جدید ساخت کی جیپ تھی۔ گیسٹ ہاؤس کے ایک کمرے میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ لوسیا کی موجودگی سے یہ فائدہ ہو سکتا تھا کہ پروفیسر فیڈرک کے آدمیوں سے میرا براہ راست تعارف ہو جائے۔ اس کے بعد باقی معاملات مجھے خود ہی سنبھالنا تھے۔ میں انتظار کرتا رہا، لیکن مقررہ وقت گزر گیا۔ مزید 1 گھنٹہ، پھر 2 گھنٹے اور 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد میری بے چینی میں شدید اضافہ ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، لوسیا کیوں نہیں آئی تھی۔ دل میں خیال آتا تھا کہ واپس جا کر اسے دیکھوں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ اس کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے، لیکن پھر یہ احساس ہوتا تھا کہ مسٹر جنکارڈ مجھ سے بری طرح لپٹ جائیں گے اور ممکن ہے اس کے بعد کافی عرصے تک ان سے پیچھا چھڑانا ناممکن ہو۔ بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ لوسیا کو یہیں خدا حافظ کہہ دیا جائے اور میں اپنے مشن پر روانہ ہو جاؤں۔ اس سے زیادہ انتظار کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اگر لوسیا کے ان کاغذات کے سہارے پروفیسر فیڈرک سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے طور پر ہی مجھے یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ چنانچہ مزید 15 منٹ انتظار کے بعد میں جیپ کے اسٹیئرنگ پر جا بیٹھا۔ ڈیش بورڈ کے نچلے خانے میں چابی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے نکالا اور جیپ اسٹارٹ کرنے کے بعد ریورس کر کے دروازے تک لے آیا، پھر اتر کر دروازہ کھولا اور جیپ کو ریورس کر کے باہر نکال دیا۔ دروازہ میں نے اسی طرح بند کر دیا تھا اور اس کے بعد جیپ کا رخ اس پگڈنڈی کی جانب ہو گیا جس کی لوسیا نے نشاندہی کی تھی۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا تھا کہ میں نے اس سے راستے کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی، ورنہ میرے لیے راستے کا تعین بالکل ممکن نہ ہوتا۔ پگڈنڈی زیادہ چوڑی نہیں تھی، اس کے کنارے پر گھاس اگی ہوئی تھی۔ لوسیا اس پگڈنڈی پر سفر کرتی رہتی تھی، چنانچہ جہاں تک جیپ کے ٹائروں کی پہنچ تھی وہاں گھاس کچل گئی تھی اور راستہ بنتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میں جیپ دوڑاتا رہا اور اطراف میں نگاہ جمائے رہا۔ بعض اوقات یہ خیال ذہن میں آتا
کہ کہیں میں کسی مخبوط الحواس عورت کے چکر میں تو نہیں پڑ گیا۔ لوسیا نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ بھی ہے یا ایک فرضی کہانی کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے تقریباً 7 میل تک سفر کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد وہ وادی شروع ہو گئی جس کی نشاندہی لوسیا نے کی تھی۔ در حقیقت اس وادی میں جیپ کا گزر ممکن نہیں تھا۔ اونچی اونچی نوکیلی چٹانیں اور ان کے درمیان پڑے ہوئے پتھر جیپ کا راستہ روک رہے تھے۔ چنانچہ میں نے وہیں جھاڑیوں میں ایک جگہ جیپ چھپا دی اور اتر کر وادی میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی سی ڈھلان طے کرنے کے بعد میں ان چٹانوں کے درمیان پہنچ گیا۔ بڑا مشکل راستہ تھا جسے طے کرنا آسان کام نہیں تھا، لیکن بہرطور میں اسے عبور کرتا رہا۔ اس دوران میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میرے لیے کچھ مشکلات پیدا ہونے والی ہیں۔ اس احساس کی بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی، بس ذہن میں کچھ نامعلوم گوشوں میں خدشات سر ابھار رہے تھے۔ اس طویل و عریض وادی کو عبور کرنے میں نہ جانے کتنا وقت لگا۔ میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا تھا، لیکن جب میں وادی کے آخری کنارے پر پہنچا تو طبیعت کو فرد کا احساس ہوا۔ جس دشوار گزار راستے سے گزر کر آیا تھا اس کا اختتام ایک نہایت خوبصورت اور پرسکون جگہ پر واقع ہوا تھا۔ اطراف میں درخت پھیلے ہوئے تھے، گو یہ درخت زیادہ گھنے اور اونچے نہیں تھے، لیکن بہر طور انہوں نے یہاں کا ماحول خوشگوار بنا دیا تھا۔ اس لمبے راستے کو عبور کرتے ہوئے بڑی تھکن سی ہو گئی تھی، چنانچہ میں نے کچھ دیر بیٹھ کر آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک جگہ منتخب کر کے بیٹھ گیا۔ میری نگاہیں اطراف میں بھٹک رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر لوسیا کا کہنا درست ہے تو اب کوئی نہ کوئی میرے قریب ضرور آئے گا، مجھ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرے گا، اور میرا یہ اندازہ غلط نہیں نکلا۔ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ دفعتاً میں نے اپنے عقب میں قدموں کی آہٹیں سنی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا اور ایک دم کھڑا ہو گیا، لیکن آنے والے دونوں افراد نے میرے کھڑے ہونے کے انداز کو غلط سمجھا تھا۔ ان میں سے ایک نے ایک گھونسا پوری قوت سے میرے پیٹ میں مارا اور میں شدت تکلیف سے دورا ہو گیا۔ چونکہ میرے ذہن میں ان سے لڑنے کا تصور تک نہیں تھا، لہذا یہ اچانک افتاد میرے لیے بکھلا دینے والی تھی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دفعتاً دوسرے آدمی نے اچھل کر میری کمر پر لات ماری۔ اس بار مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا دشوار ہو گیا تھا، چنانچہ میں اوندے منہ نیچے جا پڑا۔ ان میں سے پہلا آدمی جس نے میرے سر پر وار کیا تھا پھرتی سے میرے سر پر پہنچا۔ اس نے اچھل کر دونوں ٹانگیں میرے سر میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن اب میرے لیے یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ خاموشی سے مار کھاتا رہوں۔ چنانچہ میں نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لیں اور پوری قوت سے انہیں گھما دیا۔ میری کوشش کارگر ہوئی تھی۔ وہ تیز رفتاری سے سامنے والے شخص سے ٹکرایا اور وہ دونوں بل بلاتے ہوئے دورے ہو گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ان لوگوں نے آتے ہی جنگ شروع کر دی تھی، ورنہ مجھے اگر ان سے گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا تو شاید یہ صورتحال پیش نہ آتی۔ میں بھی سنبھل کر اٹھا ہی تھا کہ ایک اور شخص کو میں نے درخت کی آڑ سے نکلتے دیکھا، اور اسے دیکھ کر در حقیقت ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے حواس سنبھالنا پڑے۔ اس کے شانوں کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ اتنے چوڑے شانوں والا آدمی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گردن بھی شانوں پر رکھی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ قد زیادہ نہیں تھا، مگر بدن کے پھیلاؤ میں ایک عجیب سی ہیبت تھی۔ بس وہ ایک طاقتور آدمی کا کارٹون معلوم ہوتا تھا۔ لمبے لمبے ہاتھ گھٹنوں سے نیچے لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح عمل کیا اور کچھ سوچے سمجھے بغیر میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ اس کی کوشش تو یہی تھی کہ مجھ پر چھلانگ لگا کر مجھے قابو میں کر لے، مگر میں نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی اور لڑکتا ہوا دور پہنچ گیا۔ اس نے بھی اپنے آپ کو سنبھالا اور پھنکارے مارتا ہوا میرے سر پر سوار ہو گیا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر پھرتی سے موڑا اور اپنی دونوں ٹانگیں نیچے لیٹے ہی اس کے پیٹ میں ماری۔ میری یہ کوشش کارگر ہوئی تھی۔ وہ کافی دور جا گرا اور میں پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہوا، لیکن اس نے بھی الٹی چھلانگ لگا کر خود کو سیدھا کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ لعنت ہے تم لوگوں پر، میں نے وسیلے لہجے میں کہا۔ اب پہلے تم سے جنگ ہی کر لوں، پھر دوسرے کام ہو جائیں گے۔ میں نے دل میں سوچا اور ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ جن دو آدمیوں کو میں نے اس سے پہلے سنبھالا تھا وہ بھی اپنے آپ کو سنبھال چکے تھے۔ سب سے زیادہ خطرناک یہی چوڑے شانوں والا تھا۔ چنانچہ اس نے جھکائی دے کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے موڑنا شروع کر دیا۔ اس کی اس بے پناہ قوت کے بارے میں پہلے ہی اندازہ لگا چکا تھا، لیکن میں نے ایک پھر کلابازی کھائی اور اس کے شانے پر سوار ہو گیا۔ میرا بازو اب بھی اس کی گرفت میں تھا، لیکن اس کے شانوں پر چڑھ کر میں نے اس کی کنپٹیوں پر دونوں کھڑے ہاتھ مارے اور اس نے بے اختیار میرا بازو چھوڑ دیا۔ میں نے پھر الٹی کلابازی کھائی اور زمین پر آ گیا۔ اس خطرناک جدوجہد نے مجھے بری طرح پریشان کر دیا تھا۔ وہ دونوں آدمی جو مجھ پر سب سے پہلے حملہ آور ہوئے تھے اب میرے قریب آنے سے کترا رہے تھے۔ غالباً ان کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ اس چوڑے شانے والے سے میری جنگ کے درمیان وہ کہیں کسی نقصان کا شکار نہ ہو جائے، لیکن مجھے بھی یہ اندازہ ہو چکا تھا
कि अब उन लोगों को मजा चखाए बगैर मेरा काम होना मुश्किल ही है, क्योंकि वो कुछ सुनने के मूड में नहीं है और सिर्फ जंग करना चाहते हैं। मेरा बाजू छूट गया था, लेकिन उसके साथ ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी बाईं पसली टूट गई हो। मैंने दीवानावर एक लात घुमाकर उसकी ठोड़ी पर जमा दी और वो उछलकर दूर जा गिरा। उसने संभल कर उठने की कोशिश की, मगर मैं छलांग लगाकर उसके सर पर पहुंच गया और उसको दबोच लिया। उसके दोनों हाथों को मैंने अपने पैरों के नीचे दबाया और फिर उछलकर दोनों टांगे उसके पंजों पर रसीद कर दी। उसके मुंह से दिल खराश चीख निकल गई थी, लेकिन मैंने उसी पर बस नहीं किया। पीछे हटकर मैंने पूरी कुव्वत से एक ठोकर उसके सर पर लगाई। बिलाशुबा फुटबॉल का कोई जबरदस्त खिलाड़ी भी इतनी शानदार किक नहीं लगा सकता था। मेरी इस ठोकर से वो उठकर खड़ा हो गया, मगर खड़े होने में उसके हाथों के सहारे का जरा भी दखल नहीं था। सीधा खड़ा होने के बाद वो ऊंधे मुंह जमीन पर जा पड़ा और उसी वक्त दफतन फिजा में 2 फायरों की आवाज उभरी और उसके साथ ही एक गर्राती हुई आवाज उभरी, खबरदार, खबरदार, अगर किसी ने जुम्बश करने की कोशिश की तो उसका भेजा उड़ा दिया जाएगा। ये आवाज भी एक दरख्त के अकब से ही आई थी। बाहर आने वाला एक दराज कद आदमी था, दुबले पतले बदन और चुंदी आंखों वाला, जिसके सर पर छोटे छोटे बाल खड़े हुए थे। खासी खूनख्वार शक्ल थी। वो भी मैंने उसके हाथ में इशारिया 4-7 के पिस्तौल को देखा, जिसकी नाल जरूरत से ज्यादा लंबी और शायद किसी मखसूस साख्त की थी। मैं खुश खूंटों पर जबान फेर कर सीधा हो गया। दराज कद आदमी आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब पहुंच गया। वो खासा चाको चौबंद और फुर्तीला मालूम होता था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हूँ तो तुम्हारा इस बार इंतखाब किया गया है। इस जुमले का मतलब मेरी समझ में नहीं आया था। मैंने अपने इतराफ में खड़े हुए लोगों को देखा। चौड़े शानों वाला फिर उठकर खड़ा हो गया था, लेकिन अब उसके अंदाज में बेबसी पाई जाती थी। गालबन सर पर पड़ने वाली ठोकर ने उसका दिमाग छिकरा कर रख दिया था और वो अभी तक अपने आवाज पर काबू नहीं पा सका था। फिर उसकी निगाहें मेरे ऊपर पड़ी और उसकी आंखों में खून नजर आने लगा। वो दोनों हाथ बढ़ाकर मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन उसी वक्त दराज कद आदमी ने पिस्तौल से एक फायर किया और वो गोली उसके पैरों के पास लगी। जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो तुम्हें जुम्बश करने की जरूरत नहीं, दराज कद आदमी अपनी मखसूस आवाज में बोला और चौड़े शानों वाला रुक गया, लेकिन वो अब भी कीनातोज निगाहों से मुझे देख रहा था। दराज कद आदमी ने फिर कहा, मरने से पहले अगर अपने बारे में बता दो तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना हम ये भी जान ना सकेंगे कि तुम कौन हो। अगर वाकई इंसानों की तरह गुफ्तगू करना चाहते हो तो पहले इंसान बनो। इन सब से कहो कि ये जानवरों की तरह किसी पर पल पड़ने की बजाय इंसानों से गुफ्तगू करने का सलीका सीखें। इनसे पूछो कि ये क्यों मुझ पर हमलावर हुए थे। उनसे जो कुछ पूछना है बाद में मैं पूछ लूंगा। पहले तुमसे सवाल करता हूँ, तुम बताओ कौन हो तुम? क्या तुम्हें ये सब कुछ बताना जरूरी है? हाँ, अगर नहीं बताओगे तब भी हमारा नुकसान नहीं होगा। ये हो सकता है कि अगर तुम्हारे बारे में तफसील पता चल जाए तो तुम्हारी जान बख्शी के लिए गौर किया जाए। तो फिर यूं समझ लो कि यहाँ मैं प्रोफेसर फीडरक के आदमियों से मिलने आया था। क्या? दराज कामत आदमी का मुंह एक लम्हे के लिए हैरत से खुला, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसका चेहरा बिगड़ गया। गोया अब तुम हमसे चाल चलने की कोशिश करोगे। सुनो अहमक आदमी, अगर तुम प्रोफेसर फेडरक के आदमी हो तो मैं तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेसर फेडरक के लिए एक अहम पैगाम लेकर आया था और तुम लोगों ने यहाँ इस तरह मेरी पजीराई की। मैं कहता हूँ बकवास मत करो। प्रोफेसर फीडरक के लिए पैगाम लाने वाले तनहा नहीं होते, तो कौन होता है उनके साथ? मैंने सवाल किया और दराज कद आदमी हकारत अमेज अंदाज में हंसने लगा। ये भी तुम ही बता सकते हो अगर तुम वाकई प्रोफेसर फीडरक से मिलने आए हो। अगर तुम्हारी मुराद लूसिया कैलस से है तो यूं समझ लो कि इस बार वो मेरे साथ नहीं आ सकी और उसने प्रोफेसर फीडरक के लिए एक पैगाम दिया है। दराज कद आदमी बुरी तरह उछल पड़ा था। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए बदवासी के आसार नजर आए। फिर वो भारी लहजे में बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? अहमक आदमी, तुम लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया है इसकी जवाबदेही तुम्हें करना होगी। किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले ये तो अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वो दोस्त है या दुश्मन, मैंने कहा। दराज कद आदमी गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगा था। फिर उसने अपने साथियों की तरफ रुख करके कहा, इसके दोनों हाथ पुश्त पर कस दो और इसे ले चलो। वो दोनों आदमी जो सबसे पहले मुझसे मुकाबले पर आए थे और जो मेरी कोशिशों के नतीजे में थोड़े से जख्मी हो गए थे, बदस्तूर कीनातोज निगाहों से मुझे देख रहे थे। वो आगे बढ़े और उन्होंने मेरे दोनों हाथ पुश्त पर कस दिए। मैंने कोई तारुज नहीं किया था, सामने पिस्तौल था और फिर ये अंदाजा हो चुका था कि इन लोगों का ताल्लुक फेडरक ही से है। मैं पुरसुकून अंदाज में उनके साथ चल रहा था। तकरीबन 50 गज चलने के बाद झाड़ियों में एक जीप नजर आई और उन्होंने मुझे उस जीप में बैठने के लिए कहा।
दराज कद आदमी बिल्कुल मेरे सामने बैठ गया। उसके हाथ में अब भी पिस्तौल था। थोड़ी दूर चलने के बाद अपनी जेब से स्याह रंग की एक पट्टी निकाली और फिर उसे मेरी आंखों पर बांधते हुए कहा, इस कार्रवाई के लिए मैं तुमसे मादरत ख्वाह हूँ, लेकिन उस वक्त तक जब तक ये यकीन ना हो जाए कि तुम दर हकीकत प्रोफेसर ही से मिलना चाहते हो, हम तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं कर सकते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। पट्टी बंद जाने के बाद मेरी निगाहों के सामने तारीकी फैल गई थी। मैंने रास्तों का अंदाजा लगाने की भी कोशिश नहीं की। मेरा यह सफर तकरीबन 30 या 32 मिनट का रहा था और इसी दौरान ये अंदाजा जरूर लगा लिया था मैंने कि जीप जिस रास्ते पर सफर कर रही है वो नाहमवार है और कोई बाकायदा सड़क नहीं। जब मेरी आंखों से पट्टी खोली गई तो मेरे उस अंदाजे की तस्दीक हो गई। हम पहाड़ों ही में थे। जिस जगह जीप रुकी थी उसके ऐन सामने एक बड़े से गार का दहाना नजर आ रहा था, जिसके इतराफ में ऊंची ऊंची झाड़ियां बिखरी हुई थी। दराज का आदमी ने मुझसे नीचे उतरने के लिए कहा और मैंने उसके हुक्म की तामील की। गार के दहाने में तकरीबन 10 गज तक सीधे आगे बढ़ना पड़ा था। उसके बाद ये रास्ता बाईं सिमत मुड़ जाता था और यहाँ खासी कुशादा जगह बनी हुई थी। मुझे एक छोटे से सुराख के जरिए अंदर दाखिल होने के लिए कहा गया, जो इस बड़े से हालनुमा गार के एक कोने में बना हुआ था। यहाँ पहुंचकर दराज कद आदमी ने कहा, तुम्हें यहाँ कुछ देर आराम करना होगा। प्रोफेसर को तुम्हारी आमद की इतला पहुंचा दी जाएगी। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा, मैंने कहा। दराज कद आदमी हंसने लगा, फिर बोला, बहरहाल इंतजार तो करना होगा। क्या मेरे हाथ बंधे रहेंगे? मैंने सवाल किया। नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी तलाशी देना होगी, जो हमने अब तक नहीं ली। मेरे पास जो कुछ भी है, अगर तुमने उसे छीनने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। फिर यह भी हो सकता है कि मैं हर एहतियात को बालाए ताक रख दूं। हमें सिर्फ तुम्हारे हथियार चाहिए, दराज कद आदमी ने कहा और उसके बाद उसने खुद ही आगे बढ़कर मेरी तलाशी ले डाली। मेरे पास जो कुछ था उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और उसके बाद मेरे हाथ खोल दिए गए। अलबत्ता वो कागजात जो लूसिया ने मेरे हवाले किए थे उन्होंने नहीं लिए थे। दराज कद आदमी बाहर निकल गया और गार के दरवाजे को किसी खास फंक्शन के तहत एक चट्टान से बंद कर दिया। अंदर इतनी जगह थी कि मैं यहाँ आराम कर सकता था। मैंने खुद को पुरसुकून रखा। जो कार्रवाई की गई थी वो लाजमी थी, कम अज कम इतना तो होना ही चाहिए था। मुझे तकरीबन 4 घंटे कैद रहना पड़ा। 5वां घंटा शुरू होते ही चट्टानी दरवाजा अपनी जगह से हटा और तेज रोशनी की किरणें अंदर आ गईं। चट्टान इस तरह दाने पर फिट होती थी कि अंदर के माहौल पर तारीकी मुसल्लत हो जाती थी और बाहर से रोशनी की किरण भी अंदर नहीं आ सकती थी। मुझे अंदाजा हुआ कि गार में तेज रोशनी कर दी गई है। ये रोशनी खास किस्म के लैंपों की थी जो बैटरी से चार्ज होते हैं। इस बड़े से हालनुमा गार में मुझे सफेद सूट में मलबूस सुनहरे बालों वाला एक बूढ़ा आदमी नजर आया, जिसकी आंखों पर सुनहरी कमानी की ऐनक चढ़ी हुई थी और न जाने क्यों उसे देखकर ज़हन में प्रोफेसर ही का लफ्ज उभरता था। जब मैं उस बड़े हालनुमा गार में दाखिल हुआ था तो इस गार में कोई खास फर्नीचर वगैरह नहीं था, लेकिन इस वक्त यहाँ एक बड़ी सी मेज और चंद कुर्सियां डाल दी गई थी। उन्हीं में से एक कुर्सी पर वो शख्स बैठा हुआ था जो नरमो नाजुक सी शख्सियत का मालिक था, लेकिन चेहरे की बनावट बताती थी कि इंतहाई सख्त गिर है। मुझे उसके सामने पेश किया गया तो उसने थोड़ा सा उठकर मेरा खैर मकदम किया और मुझे नरम आवाज में कुर्सी पर बैठने की पेशकश की। ये हकीकत है नौजवान दोस्त कि हम अपने दुश्मनों से नबर्द आजमा हैं और अपनी जिंदगी के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे हालात में हमें बाज़ औक़ात हर मशकूक शख्स के साथ सख्त कार्रवाई करना पड़ती है और ये कार्रवाई हर किस्म की हो सकती है। इंसानी जिंदगी लेना इंसानियत नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात हालात इस कदर नाजुक हो जाते हैं कि बहुत सी इखलाकी कदरों को नज़रअंदाज कर देना पड़ता है। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। मुझे उस बारे में थोड़ी सी इतलात मिल चुकी हैं, लेकिन अब ये साबित करो कि जो कुछ तुमने कहा है वो दुरुस्त भी है। क्या आप ही फेडरिक हैं? मैंने सवाल किया। हाँ, मुझे इसी नाम से पुकारा जाता है, लेकिन मैं अपनी असल जिंदगी से हटकर दूसरे रास्ते पर आ गया हूँ। चुनाचे प्रोफेसर अब कुछ अजीब सा लगता है। बेहतर ये होगा कि तुम फेडरिक के नाम से ही मुखातिब करो। ठीक है प्रोफेसर, मेरा मतलब है मिस्टर फेडरिक। मैं आपसे आपके आदमियों की अब कोई शिकायत नहीं करूंगा। अपनी मजबूरियों को जाहिर है आप ही बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। मैं मुख्तसर अल्फाज में आपको अपनी आमद की वजह बता देना चाहता हूँ। ये कुछ कागजात हैं जो लूसिया कैलस ने मुझे आपके लिए दिए थे। मैंने वो कागजात निकाल कर प्रोफेसर के सामने रख दिए और उसने बेइख्तियाराना अंदाज में उन्हें उठाकर जल्दी से अपने नज़दीक कर लिया। वो कागजात को खोलकर देखने लगा और फिर उसके चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। मगर ये कागजात तो किसी और को यहाँ लाने थे। उसके सिलसिले में हाँ, लूसिया ने मुझे बताया था कि वो शख्स जो कागजात लेकर यहाँ आया था
और जिसे तुम्हारे पास पहुंचना चाहिए था इस पोजीशन में नहीं था कि यहाँ रुक सके, लिहाजा वो ये कागजात लूसिया को देकर वापस चला गया। लूसिया खुद ही उन्हें आपके पास पहुंचाना चाहती थी, लेकिन दरमियान में उससे मेरा सामना हो गया और उसने इस सिलसिले में मुझ पर भरोसा कर लिया। प्रोफेसर के चेहरे पर नागवारी के हल्के से तासरात नजर आए और फिर उसने मुझ पर मुश्तबा निगाहों से देखते हुए कहा, क्या तुमने इन कागजात का जायजा लिया है? नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा अपना एक केस है, मैंने कहा, और प्रोफेसर ने कागजात का पैकेट बंद करके अपनी कोहनियों के नीचे रख लिया। मैं नहीं समझा, उसने गहरी निगाहों से मुझे घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में गैर मामूली चमक थी और ये आंखें रेन के गोशों को टटोलती हुई महसूस होती थी। मिस्टर फेडरिक, मैं एक तवील सफर तय करके जैसी आर्गन के इलाके में दाखिल हुआ हूँ। मेरा झगड़ा बार्बन वाइको से है। लूसिया बस इत्तेफाक से मुझे मिल गई और मैं उसका सहारा लेने पर मजबूर हो गया। तुम्हारी उलझी हुई गुफ्तगू का एक लफ्ज भी मेरी समझ में नहीं आया। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम कुछ और खुल जाओ? अगर तुम्हारा कोई झगड़ा बार्बन वाइको से है तो वाकई इस बात पर यकीन कर लो कि फेडरिक तुम्हारा दोस्त है। मैं जानता हूँ मिस्टर फेडरिक, बहुत ज्यादा एहतियात सही रास्तों से दूर कर देती है। मेरा ताल्लुक तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से है और बार्बन वाइको के पास एक ऐसा खुफिया मंसूबा है जो तंजीम के खिलाफ है। मैं बार्बन वाइको से उस मंसूबे की तफसीलात हासिल करना चाहता हूँ और इसी की खातिर मैंने जैसी आर्गन तक का सफर तय किया है। इस मंसूबे की कुछ तफसीलात ग्रीन लाट में जेम्स पोकर नामी शख्स से मुझे हासिल होना थी, लेकिन जब मैं जेम्स पोकर के पास पहुंचा तो वो हलाक किया जा चुका था। प्रोफेसर फेडरिक बुरी तरह चौंक पड़ा था। वो गहरी निगाहों से मुझे देख रहा था, लेकिन उसने मुंह से कुछ बोलने की कोशिश नहीं की। जेम्स पोकर की रिहाइशगाह से निकलने के बाद कुछ नामालूम लोग मेरा ताकुब करते रहे थे और उन्होंने मुझे हलाक करने की कोशिश की, लेकिन मैं बचता बचाता किसी तरह लूसिया कैलस तक पहुंच गया और उसने मुझे पनाह दे दी। सादा सी फितरत की मालिक उस लड़की ने अपनी जिंदगी के वाकयात सुनाते हुए प्रोफेसर फेडरिक का जिक्र किया और जब उसने ये बताया कि जैसी आर्गन में बार्बन वाइको का हरीफ प्रोफेसर फेडरिक है, तो मेरे ज़हन में ये ख्याल पैदा हुआ कि जिस तरह भी मुमकिन हो सके इस सिलसिले में आपकी इमदाद हासिल की जाए। जब मैंने उससे अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया तो लूसिया ने बड़े एतमाद से कहा कि प्रोफेसर फेडरिक मेरी मदद करेंगे और उसके बाद उसने मुझे ये कागजात देकर आपके पास रवाना कर दिया। ये है मेरी कहानी प्रोफेसर फेडरिक। मैंने एक बार फिर उसके चेहरे की तरफ निगाह उठाई तो उसके नरम और मुशफ़्फ़क़ चेहरे पर मुस्कुराहट की एक हल्की सी लकीर नजर आई, जिसे मैंने अजीब अंदाज में देखा। ये भी दिलचस्प बात है डियर डैनी विल्सन कि मैं तुमसे उस वक्त से वाकिफ हूँ जब तुम फैक्ट्री एरिया से बाहर निकल रहे थे और जेम्स पोकर के आदमियों ने तुम्हारा ताकुब किया था। अब मेरे चौंकने की बारी थी। मैंने ताज्जुब खेज निगाहों से प्रोफेसर फेडरिक को देखा और प्रोफेसर फेडरिक गर्दन हिलाते हुए बोला, हाँ, जेम्स पोकर बार्बन वाइको का बैंक था। बार्बन वाइको के तमाम खुफिया कागजात उसी की तहवील में रहते थे और हमें कुछ कागजात के उसूल के लिए जेम्स पोकर को कत्ल करना पड़ा था। प्रोफेसर आपको? हाँ, मेरा ख्याल है तमाम सूरत हाल तुम्हारे इल्म में आ चुकी होगी और अब तुम्हें इस बात पर हैरत नहीं होगी। ओह, एक गहरी सांस मेरे मुंह से निकल गई। एक सवाल आपसे जरूर करूंगा प्रोफेसर। हाँ कहो। जेम्स पोकर से वो खुफिया कागजात हासिल करते हुए क्या आपकी निगाह किसी ब्लैक प्लान नामी फाइल पर पड़ी थी? नहीं, ये क्या चीज थी? वही मंसूबा जो फलस्तीनियों के खिलाफ है। बहरहाल मुझे उससे कोई गरज नहीं। लूसिया कैलस एक मासूम लड़की है और उस मासूम लड़की ने जिस एतमाद से तुम्हें मेरे पास भेजा है, मैं इस एतमाद को मजरू नहीं होने दूंगा। बेहतर है मेरे पास कुछ वक्त क़याम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंसूबा बंदी करता हूँ। मेरे बारे में बहुत ज्यादा जानने की कोशिश बेकार ही होगी, क्योंकि उससे तुम्हें कोई फायदा हासिल नहीं होगा। मुख्तसर इतना समझ लो कि मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जिसका तसव्वुर मैंने अपनी उम्र के 45 सालों तक नहीं किया था। और वो जो ये बात सुनते हैं कि जैसी आर्गन के बार्बिन वाइको के खिलाफ प्रोफेसर फेडरिक जैसा मुनहनी और बेवकूफ़ शख्स उठ खड़ा हुआ है, लोग दांतों में उंगलियां दबा कर रह जाते हैं। लेकिन हालात इसी का तकाजा करते थे। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए बेहतर जगह मुंतखब कर देता हूँ और ये भी वादा करता हूँ कि तुमसे तुम्हारे काम के सिलसिले में तसाइल नहीं बरता जाएगा। बस ये समझ लो कि जो खतरा तुमने मोल लिया था उससे तुम्हें फायदा ही पहुंच रहा है, नुकसान नहीं। मैंने ममनून निगाहों से प्रोफेसर फेडरिक को देखा और फिर कहा, शुक्रिया प्रोफेसर, मैं सिर्फ आपसे बार्बन वाइको के बारे में मुकम्मल तफसीलात और उस तक रसाई हासिल करने के जराए हासिल करना चाहता हूँ। उसके बाद बाकी काम मैं खुद अपने तौर पर करूँगा। प्रोफेसर फिर मुस्कुराया और बोला, उसके लिए थोड़ा सा सब्र जरूरी है। तुम तनहा नहीं बल्कि हम सभी तुम्हारे साथ हैं। क्यों ना अब हम यहाँ से रवाना हो जाएं। जैसा आप पसंद करें प्रोफेसर, मैंने जवाब दिया।
प्रोफेसर ने मुझ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया था और थोड़ी देर के बाद हम उन गारों से निकल आए और प्रोफेसर मुझे अपने साथ लेकर एक सिमत चल पड़ा। दरख्तों में एक स्याह रंग की लैंड रोवर पोशीदा थी जिसके इतराफ में 2 जीपें भी खड़ी हुई थी। प्रोफेसर ने लैंड रोवर का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बैठने का इशारा करके खुद भी मेरे साथ बैठ गया। तकरीबन 45 मिनट तक सफर के बाद लैंड रोवर किसी इमारत में दाखिल हो गई और इस छोटी सी खूबसूरत इमारत में प्रोफेसर ने मेरी रहनुमाई एक कमरे तक की जो गालिबन ख्वाबगाह की हैसियत रखता था और उसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की वो तमाम चीज़ें मौजूद थीं जिनकी ज़रूरत पेश आ सकती थी। वो चला गया और मैं एक आराम कुर्सी पर दराज होकर अपने आप पर हंसने लगा। ऐसे ऐसे गैर मुतवक्के वाक़यात पेश आ जाते थे ज़िंदगी में कि कभी इनका तसव्वुर भी ना किया था। कहाँ से चला था, कहाँ आ पहुंचा। बहरहाल अब मैं जैसी आर्गन में था और बार्बन वाइको मुझसे दूर नहीं था। प्रोफेसर के ताउन से मैं फायदा उठाना चाहता था, लेकिन अगर वो कोई मुअस्सर मंसूबा पेश ना कर सका तो फिर मुझे खुद ही सब कुछ करना होगा। यही काफी था कि ऐसी कोई शख्सियत मुझसे मुफाहमत कर रही थी जिसका ताल्लुक जैसी आर्गन से था। अपने तौर पर मैं काफी बेचैन था। प्रोफेसर का ताउन अपनी जगह, लेकिन मैं खुद भी मुअत्तल होकर नहीं बैठना चाहता था और कुछ नहीं तो जैसी आर्गन के इलाके की तफसीली मालूम हो जाए ताकि बार्बन वाइको के खिलाफ काम करने में आसानी हो। लेकिन प्रोफेसर ने मुझे ज्यादा इंतजार नहीं कराया। दूसरी शाम तकरीबन 6 बजे मेरे पास 2 अफराद आए और उन्होंने प्रोफेसर का पैगाम दिया कि वो मुझसे मिलना चाहता है। मैं तैयार हो गया। प्रोफेसर ने एक शानदार इमारत में मुझसे मुलाकात की थी। उसने मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया और अपने सामने बैठने की पेशकश करते हुए बोला, मेरे ख्याल में तुम खुशनसीब इंसान हो डैनी कि हमें बार्बन वाइको से मुलाकात करने का एक फौरी मौका मिल रहा है। लिहाजा आज रात या कल दिन मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तुम तैयार हो जाओ। मैं किसी तफसीली तमीद के बगैर तुम्हें सूरत हाल बताता हूँ। तुम्हें शायद ये मालूम ना हो कि बार्बन वाइको और मैं एक दूसरे को कत्ल करना नहीं चाहते, बल्कि हमारे दरमियान ज़हनी जंग हो रही है। हमारा निस्बुल ऐन है कि एक मखसूस मुद्दत में ये साबित कर दें कि कौन एक दूसरे से बरतर है। मैं वाइको को तबाह कर दूं या वो मुझे, और हम इसी पर अमल कर रहे हैं। चुनाचे नफा नुकसान को देखे बगैर हम एक दूसरे के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ऐसा ही एक मौका मुझे नसीब हो गया है। ये तमहीद हुई प्रोफेसर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बस इतनी ही थी। लॉर्ड विलाडी वाइन का नाम सुना है तुमने? नहीं। लास वेगास का एक खतरनाक दौलतमंद है, एक बैनुल अक़वामी गुंडा, खुद साख्ता लॉर्ड, ज़हनी और जिस्मानी जंग का माहिर है। उसने एक बड़ी कंपनी पर कब्जा करके ज़हनी जराइम की दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया है। प्लाटिनियम पॉइंट के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन उस काम पर बार्बन वाइको और लॉर्ड वाइन के दरमियान तनाज़ा चल रहा है और उसकी तफसील के लिए चंद नुमाइंदे आज रात को 1 बजे जैसी आर्गन आ रहे हैं। गुड, मैंने गहरी निगाहों से प्रोफेसर को देखते हुए कहा। आने वालों की तादाद सिर्फ 2 है, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक लॉर्ड ने बार्बन वाइको के कुछ साथी तोड़ लिए हैं जो गुफ्तगू के वक्त वहाँ चौकस रहेंगे और लॉर्ड के मुकामात की निगरानी करेंगे। वेरी गुड। मेरी आंखों में चमक पैदा होती जा रही थी। तुम्हें बार्बन वाइको तक पहुंचाने का एक मौसर जरिया यही है, लेकिन उसके बाद का काम तुम्हारा होगा। प्रोफेसर ने मुझे बागौर देखते हुए कहा। मैं समझ रहा हूँ, मैंने गर्दन हिलाई। तुम मेरी तजवीज़ से इख्तलाफ भी कर सकते हो, मेरी दिलचस्पी की वजह समझ चुके होगे। वाइको को एक और जबरदस्त चोट और उस मासूम लड़की की दरख्वास्त की तामील। प्लाटिनियम पॉइंट क्या है? मेरे ख्याल में उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम हो सकता। क्या यह बहुत मुश्किल होगा? नामुमकिन होगा। तुमने शायद मेरे प्रोग्राम पर तवज्जो नहीं दी। प्रोफेसर ने मायूसी से होंठ सिकोड़ते हुए कहा। नहीं प्रोफेसर, हर चंद के पूरा प्रोग्राम अभी मेरे इल्म में नहीं आया, लेकिन इतना समझ चुका हूँ कि वाइको के पास पहुंचने वाले लॉर्ड के 2 नुमाइंदों में से एक मैं हूँगा। गुड, तुमने मुझे मायूसी से बचा लिया। प्रोफेसर मुस्कुरा कर बोला। हाँ, मेरा यही प्रोग्राम है, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं कि असल नुमाइंदों से हम प्लेटिनियम पॉइंट की तफसील मालूम कर सकें। मैं गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगा था। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद मैंने कहा, लेकिन अगर मुझे बार्बन वाइको के सामने पहुंचना है तो प्लेटिनियम पॉइंट के बारे में गुफ्तगू करने के अलावा और क्या गुफ्तगू हो सकती है? मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं, प्रोफेसर ने जवाब दिया। तो फिर प्रोफेसर, क्या ये इंतहाई मुश्किल काम नहीं होगा? मैंने सवाल किया। मुमकिन है मैं तुम्हें उस सिलसिले में थोड़ी बहुत मालूमात कुछ देर के बाद फराहम कर सकूं, लेकिन वो भी इस कदर नहीं होंगी कि तुम उनसे मुकम्मल फायदा हासिल कर सको। यहाँ से सिर्फ तुम्हें अपनी जहानत पर भरोसा करना होगा। मैं पेशानी पर हाथ फेरने लगा। फिर चंद लम्हों के बाद मैंने कहा, ठीक है प्रोफेसर, अब सूरत हाल जो भी हो, हाँ
آپ نے ابھی کہا تھا کہ وہاں کچھ لوگوں کو توڑ لیا گیا ہے۔ میرا مطلب ہے لارڈ وائن کی طرف سے کیا ان لوگوں کی کوئی نشاندہی ہو سکتی ہے؟ قطعی نہیں۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ڈینی ویلسن؟ ہاں ابھی وقت ہے، اور اس مہم کو اپنے لیے بہت مشکل پاؤ تو انکار کر سکتے ہو۔ میں بھی تمہیں کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، بس یہ ایک تجویز ہے اگر تم اسے پسند کرو۔ نہیں، میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور پروفیسر مسکرانے لگا۔ تب آؤ میں تمہیں چند ضروری چیزیں دکھا دوں۔ وہ مجھے ساتھ لیے ہوئے ایک اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ بھی جدید ترین سامان آرائش سے آراستہ تھا۔ پروفیسر نے مجھے ایک صوفے پر بیٹھنے کی پیشکش کی اور پھر سامنے رکھی ہوئی میز سے ایک چھوٹی سی کیمرہ نما مشین اٹھا لایا۔ اس نے اس مشین میں تھوڑی سی کاروائی کی اور اس کے بعد اس کے لینس کا رخ ایک سفید دیوار کی جانب کر دیا۔ اس دیوار پر دیکھو، اس نے کہا۔ چند ہی لمحوں کے اندر اس دیوار پر ایک تصویر ابھر آئی۔ یہ تصویر ہٹلر اسٹائل مونچھوں والے ایک قوی عقل شخص کی تھی جس کی آنکھوں سے چالاکی اور ذہانت ٹپکتی تھی۔ پروفیسر فیڈرک نے کہا، اس کا نام بن ہام ہے۔ بن ہام لارڈ وائن کا خصوصی نمائندہ ہے، ایک چالاک اور خطرناک آدمی۔ لارڈ وائن کے نام کے ساتھ ہی بن ہام کا نام ضرور لیا جاتا ہے، اور سنا گیا ہے کہ یہ لارڈ وائن کے اہم ترین معاملات میں پیش ہے۔ ملاقات کرنے کے لیے یہی شخص آ رہا ہے، اور ہمیں اسی آدمی کو ڈاج دے کر اس کی جگہ حاصل کرنی ہے۔ یہ دوسری تصویر دیکھو، یہ بن ہام کا دوسرا ساتھی ہے جو پائلٹ بھی ہے اور بن ہام کا خصوصی آدمی بھی۔ اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، باربن وائکو کو بن ہام کی آمد کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔